Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 7, and that is a symmetry. तो symmetry क्या होता है? कोई भी एक ऐसी शेप जिसमें से हम कोई एक या दो या काफी सारी लाइंस ऐसी ड्रॉ कर पाए कि जो हमें दो उसके पार्ट्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे की मिरर इमेज हो. फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ होती है ना, तो अर्थ के बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है विच इज इक्वेटर, विच इज डिवाइडिंग द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स. सो अर्थ की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है? इक्वेटर है, ठीक है. सिमिलरली लेट्स लुक बैक एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दीज पर्टिकुलर शेप्स. सो ये वाली शेप में देयर कैन बी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. इन दिस शेप देयर कैन बी 3 lines of symmetry. In this there can be 1 line of symmetry. So in a star there can be 5 lines of symmetry. In circle there can be infinite. Then here 2, here 1, here 1, and here also 1. Alright? Now let's understand that what is symmetry. Symmetry is when a shape looks identical to its original shape after being flipped or टर्न्ड. मतलब कि इस शेप को अगर हम लोग हार्ट शेप लेते हैं, हार्ट शेप को अगर हम लोग फ्लिप करते हैं इस तरफ को, फ्लिप का मतलब ये ऐसे हैं हमारे हैंड्स, इसको फ्लिप करके बंद करा तो हमें सिर्फ 1 हैंड ही नजर आ रहा है ना. इसी तरीके से अगर हमारा जो हार्ट शेप है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड इफ आई क्लोज दिस शेप, विच शेप विल बी विजिबल? ओनली दिस शेप विल बी विजिबल. All right, चलिए. Now symmetry exists in patterns. So basically हम कह सकते हैं कि symmetry is a mirror image. तो ये एक दूसरे की mirror image है, हमारे hands एक दूसरे के mirror image है. If we close them, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाते हैं. तो ऐसी लाइन किसी शेप में से पास होती है कि जब अगर हम उस लाइन पे से अपनी पिक्चर को या अपनी शेप को फोल्ड करें तो हमें सिर्फ उसका हाफ पार्ट ही नजर आएगा, नीचे से दूसरा पार्ट नजर नहीं आएगा. सो सिमेट्री एग्जिस्ट एवरीवेयर इन आवर लाइफ. सिमेट्री एग्जिस्ट इन पैटर्न एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री डिवाइड्स द शेप इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, है ना. सो दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो एकदम देखने में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं. The line of symmetry can be vertical, horizontal, diagonal, है ना. तो इसमें हमने हर तरीके की लाइन बनाई है, diagonal भी बनाई है, horizontal भी बनाई है, vertical भी बनाई है. So let's look at these letters in English alphabet. Here A has a line of symmetry, M has, U has, B, K, S has 2 lines of symmetry, then Z has 2 lines of symmetry, but in all these shapes there are no lines of symmetry. देखो हम अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो भी ये 2 identical part नहीं है, हम ऐसे करते हैं तो भी it's just not ऐसे. So any which ways there is no identical part which is coming अगर हम इसके बीच में से कोई भी line of symmetry बनाते हैं. So F doesn't have a line of symmetry, neither G nor P and nor R. ठीक है, चलिए. So Persian carpets are made in Iran and are famous for their designs and high quality. So जो Persian carpets होते हैं ना, if you get a chance to see them, if you have them at your home, तो उसके अंदर आप देखना कि बहुत symmetry में जो है सारे designs and patterns बने होते हैं, ठीक है. Now, but there are carpets which do not have reflectional symmetry. तो ऐसे भी carpets होते हैं जिसके अंदर जो सारा डिजाइन है वो थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है, उसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, एक पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता. Now let's look at these objects and see कि इसके अंदर जो line of symmetry है that is the vertical line, and when that vertical line, if we fold the picture, just imagine that when we are folding the picture we will get half, we will able to see the half of the picture and both the parts are identical to each other. So for example, this is a book, this part is identical and this part is identical. If I close this, I get 1/2 of this. Similarly, this face, this crab, Red Fort. Red Fort is a very symmetrical monument.
See, this part is exactly identical to this part. Similarly, a butterfly, a beetle, etc. Now, you take a close-up of warps and wefts. Describe it in detail using mathematical language. So you can do that. You have to draw a line of symmetry in each of the following. How can you do that? So there is this line, there is this line of symmetry here. Then there is this line of symmetry and this line of symmetry, right? Here you have this line of symmetry, then this. Now rest 4 you are going to draw yourself. Now what is reflection and what is rotation? Reflection, परछाई, rotation, किसी भी चीज को घुमाना. जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. सो अपने एक पॉइंट पर फिक्स होकर जो चीज रोटेट करती है, जो घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. आई विल शो यू वन रोटेशन. लाइक आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड आई एम रोटेटिंग on one fixed point. So this is rotation. Okay. Now there are broadly 3 different ways of moving a figure from one place to the other in a plane without changing the shape or the size of the figure. तो उसका shape और size change ना हो but still जो figure है वो move हो जाए, उसके 3 तरीके हैं. कैसे? या तो हम उसको slide कर दें और translate कर दें. What do you mean by slide? Slide का मतलब कि suppose मेरे पास एक ये पेन है और इस पेन को मैं ऐसे स्लाइड कर दूं. So this is my pen. Suppose this is blue part and this is pink part. All right. So let's look at this. Suppose this is my blue part and this is my pink part, and I just slide it over here. मैं इसको फिसला देती हूँ, मैं इसको स्लाइड कर देती हूँ. तो मैंने इसको स्लाइड किया तो ये पेन का ना तो शेप बदला ना तो साइज बदला, और क्या हुआ कि ब्लू और पिंक एज इट इज ही रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ. हमने सिर्फ पोजीशन इसको स्लाइड करी है, यहां से हम यहां ले आए. ठीक है. नाउ लेट्स सी द हाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट अ फिगर. तो हम यहाँ पर एक मिरर है सपोजिंगली, और यहाँ मिरर के मैंने एक पेन रखा ये वाला. अब उस तरफ कैसा फिगर दिखेगा? उल्टा फिगर दिखेगा, ऐसे. सो यहाँ पर ये ऐसे था और यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा. सो दिस इज कॉल्ड मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो एफ का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. देन रोटेट अ फिगर अराउंड अ पॉइंट. अब ये एक पॉइंट पे फिक्स है मेरा पेन, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूं. ठीक है. तो इसका पोजीशन बदल रहा है लेकिन इसका साइज नहीं बदल रहा. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो मूविंग. सो दिस इज रोटेशन. फिक्सिंग एट वन पॉइंट, द फिगर मूव्स, इट रोटेट्स. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर फिक्स होकर ये जो लाइन है ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है. Now what do you mean by reflectional symmetry? Reflectional symmetry का मतलब है कि बीच में जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है that is a mirror, और मिरर के आर पार इमेज बन रही है. तो जब हम भी मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट नजर आता है, बिकॉज दिस इज अ मिरर इमेज. सो मिरर इमेज में या मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ मिरर एंड मिरर के उस पार सब कुछ उल्टा नजर आता है. होता वो आइडेंटिकल है बट लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नजर आता है. ठीक है. सो रिफ्लेक्शन एज यू नॉर्मली अंडरस्टैंड इज सीइंग द इमेज of something in a mirror. If you stand in front of the mirror image is the reverse image of yours. Right becomes left and left becomes right. Similarly, reflection in geometry is flipping a figure across a line such that it appears to be mirror image or reflection of the original object. So for example, अगर this is the letter, यहाँ पे हमारा mirror है, सो यहाँ पर जो है वो ऐसे नजर आएगा. ठीक है. सो उल्टा नजर आता है. अब बट मैं इसको क्लोज करूंगी ऐसे करके तो वो एक ही, अगर मैं इसको चाहे यहाँ फ्लिप करूं या मैं इसको यहाँ फ्लिप करूं तो मुझे ये दोनों एफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे. Each point in the reflected figure, that is the mirror image, is at the same distance from the line as the corresponding. तो एक ये बात होती है कि ये जो मिरर से डिस्टेंस है इनका वो इक्वल होता है. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि कोई अगर ये F यहाँ बना है
तो ये जो f है वो यहाँ बन जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता, दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बनते हैं। ऑलराइट, सो द लाइन इज कॉल्ड द मिरर लाइन और द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम या तो मिरर लाइन बोलते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नाउ दिस इज द मिरर लाइन, दिस इज वन ट्रायंगल ABC. हाउ विल इट लुक इन द मिरर इमेज? इट विल लुक just the reverse image of this triangle ABC and it will be like this. Now some example of reflection are this. तो यहाँ पर एक हमारा लेटर है N जो कि मिरर के उस तरफ दिखेगा इस तरीके से। तो जो लाइन ग्रीन वाली वो यहाँ पर ब्लैक सेंटर में इस तरफ डायगोनल है, अब वो राइट की तरफ जो है वो डायगोनल हो जाएगी। और जो पिंक लाइन है वो इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट में थी और यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे आ गई है। सिमिलरली फॉर अ रेक्टेंगल एंड दिस लेटर J। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे कोई भी फिगर को फिक्स करके हम उसको उसी पॉइंट पर घुमाते हैं, या फिर जैसे व्हील घूमता है ना, अपने एज पे रोटेट होता है, ऐसे 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 ऐसे। एक तो हो गया एक पॉइंट पे रोटेट होना, एक होता है जैसे व्हील घूमता है अपने सर्कल में, राउंड में, उसी राउंड में रोटेट होते जा रहा है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट पे रोटेट होता है क्या? क्लॉक होती है, विंड मिल होता है। क्लॉक की बेसिकली जो नीडल्स होती हैं, जो हैंड्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं एक पॉइंट पे। हमारा कंपास भी वर्क करता है रोटेशनल सिमेट्री पे कि कंपास की जो पॉइंटेड साइड है, जो पॉइंट है, उसको हम फिक्स कर देते हैं एंड वी ड्रॉ अ सर्कल बाय द पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल रोटेट करती है। देन अ विंड मिल इज देयर। देन जो नॉब ऑफ अ डोर है, नॉब भी जो होता है वो पीछे से एक सेंटर पे लगा होता है और सर्कल घूमता है। रोटेशन मीन्स टर्निंग एंड इन ज्योमेट्री रोटेटिंग अ फिगर मीन्स टर्निंग अ फिगर अबाउट अ गिवन पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रोटेशन। सो ये सेंटर है जहां पर हमारा रोटेशन चल रही है। दिस पॉइंट कैन बी ऑन द फिगर और एनी अदर पॉइंट। सो आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि क्लॉक के हैंड्स हो गए, एक स्टेयरिंग व्हील हो गया जो कि कार से एक पॉइंट पे कनेक्टेड होता है और सिर्फ व्हील घूम रहा होता है। देन देयर इज अ नॉब ऑफ द डोर और द विंड मिल। सो यू कैन ऑल्सो रोटेट 2D शेप्स और प्लेन शेप्स अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक सर्कल, पेपर का सर्कल बनाया, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फिक्सिंग कर दी और इसको घुमा सकते हैं। सो इसको हम कैसे घुमा सकते हैं? ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो उल्टी तरफ जाता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो सीधी तरफ जाता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, या फिर एक पूरा पूरा एंगल में रोटेट हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन, कि जैसे कि एक एंगल है यहाँ पर, राइट एंगल, सो पूरा एंगल में ही रोटेट हो गया, नीचे आ गया पूरा, फिर एक पूरे एंगल में रोटेट हो गया तो यहाँ पर आ गया। तो अगर हम एंगल में रोटेट करते हैं किसी चीज को, सो ये है हमारा क्वार्टर रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन। फिर 2 राइट एंगल्स की जितना अगर हमने रोटेट कर दिया तो मतलब ये पूरा हो गया हमारा हाफ रोटेशन। ठीक है ना, और यहां से पूरा घूम के यहां पर आ गया तो ये हमारा हो गया होल रोटेशन या फुल रोटेशन। ठीक है, सो दिस इज 1 क्वार्टर टर्न, दिस इज हाफ टर्न एंड दिस इज अ फुल टर्न, राइट? All right, so shape A is rotated through an angle of 90 degree, जैसे मैंने आपको ये बताया है about the point in clockwise direction। तो जो हम क्वार्टर है वो क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस वहां पे गिवन होना चाहिए कि हमें क्लॉकवाइज में घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। ठीक है, अब यहाँ से जब पूरा घूम के 2 बारी 90 डिग्री चला क्लॉकवाइज में, सो A से B पे आया और B से C पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 4 बारी 90 डिग्री एंगल्स घूमा और A चल के वापस से A पर आ गया, तो दिस इज फुल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन शेप D is further rotated through an angle 90 degree but point P in clockwise direction? We get back to the shape A. So some more example of rotation of geometrical figures are, अब यहाँ पर क्या है, हमारी एक geometrical figure है, कौन सी? एक triangle की।
इस ट्राइंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्या 90 डिग्री पे। तो जब हमने इसको 90 डिग्री पे इस तरीके से घुमाया तो क्या हुआ कि जो इसकी ब्लू वाली ये वाली जो लाइन है वो यहां आ गई, जो ये वाली लाइन है वो यहां आ गई, और इसकी डायगोनल लाइन यहां आ गई, है ना। आप अपना ऐसे ट्राइंगल एक पेपर कट कर सकते हैं और उसको 90 डिग्री घुमा के देख सकते हैं। सिमिलरली एक हमारे ये वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर हमने 2 बार इसको 90 डिग्री घुमाया, मतलब टोटल 180 डिग्री हमने घुमाया। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अब एक बारी और घुमा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर एक रेक्टेंगल था, ठीक है, और इसको हमने पूरा पहले 90 और फिर 180 घुमा दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये इस तरीके से दिखेगा। सिमिलरली द लेटर Z इफ वी रोटेट इट 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जब हमने इसको रोटेट किया तो सीधा ये ऐसे होकर यहाँ पर रेड लाइन, ये डायगोनल, और यहाँ पर ब्लू लाइन आ गई, ठीक है। चलिए, सो प्लीज ऑब्जर्व that a reflection followed by another reflection is equal to a rotation। तो बीच में हमारे मिरर प्लेस्ड हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि रोटेट हो रही है फिगर। नाउ यू हैव टू ट्रेस ईच फिगर एंड यू हैव टू सी दैट विच वन हैज रोटेशनल सिमेट्री, कि मतलब अगर हम जिसको घुमाते हैं तो हमें सेम फिगर मिलते जाती है। सपोज हम इसको घुमाएंगे तो हमें 180 डिग्री के बाद सेम फिगर मिल जाएगी, ठीक है। सो किसके पास रोटेशनल सिमेट्री है, प्लीज लुक इनटू दिस। नाउ से वेदर द शेप हैज बीन रोटेटेड और रिफ्लेक्टेड। सो दिस शेप, यहाँ पे बीच में हमारा मिरर है और ये इमेज जो है ये क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। अब जो हमारी ये वाली इमेज है, जो हमारा रेक्टेंगल है, वी हैव रोटेटेड इट 90 डिग्री पे। सो दिस इज रोटेशन, आपको यहां लिखना है। एंड देन दिस इज अगेन रिफ्लेक्शन। हियर यू हैव टू टेल फॉर DEF। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड इमेजेस। तो मतलब आपको मिरर इमेजेस बनानी है, कैसे, आपको यहाँ से उल्टी पिक्चर्स बनानी है। तो ध्यान रखना ये सेम डिस्टेंस पे रहेगा, वो आप मेजर करके कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये ऐसे करके हमारी इमेज बनेगी, सिमिलरली इट विल बी लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ ये आपको कैसे बनानी है फिगर्स, कि रोटेट होकर ये फिगर्स कैसी दिखेंगी, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज आपको रोटेट करनी है। तो जब आप इसको क्वार्टर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यहां से, तो क्या होगा कि पेंसिल का ये जो की का सर्कल है वो यहां होगा, और ये जो है पॉइंट इसके इस तरीके से रोटेट होगी बेसिकली। नाउ आपको जो P है उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करना है। सो इट विल लुक लाइक दिस, ओके। नाउ फॉर द C and the D part you will try for yourself. Now here you have to match the transformation that moves each shape to its new position, to its name, ठीक है। तो अब इसके अंदर ट्रांसलेशन कौन सी है, रिफ्लेक्शन कौन सी है ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और रोटेशन कौन सा है। सो यहाँ पर ये दिखाया है कि ये जो पिक्चर है ये घूम कर इधर आ रही है। सो दिस इज अ रोटेशन, ठीक है। देन दिस इज अ मिरर इमेज on a horizontal line, reflection, and this हमने सिर्फ क्या किया है, स्लाइड कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया है। So this is translation. Now name the transformation that moves each shape to its new position. Choose your answer. कि इसमें से ट्रांसलेशन कौन सा है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। हम फर्स्ट 3 कर लेते हैं। सो दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रोटेशन। प्लीज डू इट फॉर D, E and F पार्ट फॉर योरसेल्फ। हियर आर द फ्लैग्स, एंड फ्लैग्स बड़े सिमेट्री में होते हैं यूजुअली, ठीक है। जैसे इंडिया का फ्लैग तो एकदम सिमेट्री में है, वो ऐसे करो या ऐसे करो, दैट इज इन सिमेट्री। ऑलराइट, सिमिलरली this has infinite lines of symmetry, not infinite, like there are these many lines of symmetry. Similarly this has no line of symmetry,
क्योंकि बीच में ड्रैगन की वजह से देयर इज नो लाइन एंड दोनों कलर्स जो हैं वो भी हमारे अलग हैं। यहाँ पर भी देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड यहाँ पर आप अपने आप इसको कर सकते हैं कि काउंट कि कितने हुए हैं। Now let's look at the chapter backup. You have to write yes or no in the given box to indicate whether the highlighted plane is cutting the solid into two identical halves or not. तो मतलब इसमें एक narrow part है, एक बड़ा part है wider, so no. This yes, this no. Now similarly D, E और F को आप अपने आप करेंगे, which is like इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें होगा, बाकी अब आपके लिए सिर्फ 2 बचे हैं देखने के लिए। Which of the following solids are symmetrical? Write yes or no. तो आप ड्रॉ करके देख लेंगे कि इसके अंदर अगर हम बीच में से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सिमेट्री में है या नहीं, है ना। तो इस तरीके से अब जो ऐसी वाली फिगर्स हैं इसके अंदर आप कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? सो दिस इज नॉट इन सिमेट्री। सिमिलरली जो बाकी की फिगर्स हैं उसका आप ट्राई करेंगे। लुक एट दीज ट्रैफिक साइन बोर्ड्स एंड सर्कल द वंस दैट विल लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न। तो हाफ टर्न करके कौन सा ट्रैफिक सिग्नल सेम दिखेगा वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ज़ोडिएक साइंस। You can just go through this, and these are the practical based questions on the chapter of symmetry. You can do this in the maths laboratory or with your friends, teachers, and just have fun with the chapter of symmetry. This is very interesting chapter. So till then, keep learning, keep shining. Bye bye.